Very good morning to all the students of class 6. I know you are fit and you are good at your home. So students, as you know that you are attending the class of mathematics and I am your math teacher. So students, let's begin our session with a very beautiful thought of the day. Yesterday is history, tomorrow is mystery. I repeat, yesterday is history and tomorrow is mystery. As you know that you have to write this thought on the top of your notebook. As you know that students, we have completed the chapter number 3. Until now, we have covered very broad topics in the chapter number 3 like HCF, LCM, factors, multiples, prime numbers, even numbers, odd numbers, etc. One thing I want to say you that जब आप 3.4 की वीडियो क्लास को अटेंड करेंगे तो 6 से लेकर जो 10 क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको अटेंड करने के बाद आपके जो एग्जाम्पल्स गिवन है ना, एग्जाम्पल 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये आप दोबारा से रिपीट करोगे, अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे और फिर उसके बाद अगर यू विल फाइंड एनी प्रॉब्लम देन यू आर गोइंग टू आस्क मी इन द मंडेज क्लास. Is that clear? So students, as you know that we have to start with the new chapter, chapter number 4. And what is the name of the chapter? Natural numbers and whole numbers. So now I am going to explain what is natural numbers and what is whole numbers to you. Is that clear? Students, as you know that we have to start with the chapter number 4. This is a new chapter of your book. So what is the name of the chapter? Natural numbers and whole numbers. So before starting of the chapter, I will introduce what are natural numbers and what are whole numbers to you. So students, what is the introduction of the chapter? I am partitioning the board into 2 parts ताकि आपको what are natural numbers और whole numbers बिल्कुल clearly आपको पता हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ठीक है? Natural number and whole number. As you know that since you start going to school, first what you have learned that this is 1, this is 2, this is 3. ऐसे ही आपने स्टार्ट किया था ना स्कूलिंग से कि अगर एक पेंसिल आपके पास तो हम उसे 1 कहते हैं, अगर यू हैव 2 पेंसिल्स तो वो 2 होगा. तो ये क्या है, हमारे नंबर्स है. ठीक है, और जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं दैट आर काउंटिंग नंबर्स. तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स बेसिकली? Number 1, the natural number are called counting numbers, the numbers which you can count. So natural numbers are called counting numbers. Okay. Second thing, they starts from 1. जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं ना, दे स्टार्ट्स फ्रॉम 1. तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम विच नंबर? 1. दे स्टार्ट्स फ्रॉम योर 1. आफ्टर दैट 2, 3, 4. तो हम प्रोग्रेसिव नंबर जो लेते जाते हैं वो सारे ही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, दे आर इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे हैं. आप 10 करोड़ तक भी पहुंच जाओगे तो 10 करोड़ को आप काउंट कर सकते हो. तो दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, दे आर डिनोटेड बाय लेटर एन, कैपिटल एन. दे आर denoted by capital N. Okay, this is denoted by capital N. So what are your natural numbers basically? तो हमारे natural numbers क्या होते हैं, यहाँ पर मैं mention कर रही हूँ. What are natural numbers? N means natural numbers 1, 2, 3, 4 and so on. This dash represents so on, मतलब बहुत सारे. Is that clear? So now let's move to our whole numbers. Okay, तो अब हम चलते हैं whole numbers पे. What are whole numbers? So I'm writing over here whole numbers. Whole numbers are without fraction. Fraction सबको पता है बच्चे, जो हमारे p by q की फॉर्म होती है, जैसे 4 by 5. तो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं दे आर नॉट ऑफ दिस टाइप. हमारे होल नंबर्स इस टाइप की फॉर्म में कभी नहीं होते. ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हमारे होल नंबर्स कभी भी 4 by 5, 6 by 5 यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं होते हैं. So whole numbers are
numbers without fraction. Whole numbers are the numbers without fractions. ओके, इनमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता है. सेकेंड थिंग, फ्रैक्शन का मैंने क्या आपको बताया था, जैसे लाइक 2/3, 4/5, दीज आर योर फ्रैक्शंस, डोंट फॉरगेट. ओके, आफ्टर दैट it is a collection of positive numbers. It is a, and करके आप लिखोगे, it is a collection of positive number. पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं बच्चे, क्या आपको पता है पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके पास सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं होता, द नंबर्स विच हैविंग पॉजिटिव साइन. तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स के क्या एग्जांपल है? इफ आई एम राइटिंग 2, 3, 4, तो ये सारे नंबर्स क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि इनके आगे आप देख सकते हो कोई साइन नहीं है, तो यानी कि प्लस का साइन है, तो दीज नंबर्स आर योर पॉजिटिव नंबर्स. ओके, सो होल नंबर्स आर द नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन. होल नंबर्स के पास फ्रैक्शन नहीं होते, और इसमें किसका कलेक्शन आता है? पॉजिटिव नंबर्स का. ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स का एक कलेक्शन होता है एंड जीरो. और इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? जीरो को. जीरो ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है होल नंबर में. जीरो की मदद से हमारा नंबर, जीरो की मदद से हमारा नंबर होल नंबर बनता है. दे स्टार्ट फ्रॉम जीरो. The natural number starts from your 1 and your whole number starts from your 0. Okay, it is represented by, they are denoted by which symbol? W. हम इन्हें किन नंबर से डिनोट करते हैं? W. They are denoted by W. W means capital W. W stands for your whole number. तो इसके क्या है whole numbers? W is equals to 0, 1, 2, 3, 4. अब यू कैन सी दैट दिस होल नंबर कंटेन्स योर नेचुरल नंबर्स टू. आप देख सकते हैं कि जो होल नंबर है इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, क्योंकि हमारा होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम योर 0 एंड अदर आर 1, 2, 3, 4. ये सारे क्या है? 1 से जो स्टार्ट हो गए, ये तो होल नंबर हो गए. तो हमारा होल नंबर के अंदर ही हमारा, अब आप देखो यहाँ पर हमारा होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से. अब 1, 2, 3, 4 ये हमारे सारे नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स है. तो हमारा जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर्स को भी कंटेन करता है. ठीक, हमारे होल नंबर्स के अंदर की कैटेगरी में नेचुरल नंबर्स आते हैं. तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन और रिकैप एक्सरसाइज. सो व्हाट इज बेसिकली रिकैप? रिकैप मींस रिवीजन ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज. रिकैप मतलब आपकी प्रीवियस नॉलेज जो आपने गेन करी अभी तक 5th क्लास तक, उसका ही रिवीजन है रिकैप एक्सरसाइज. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज? रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. Now students, open page number 32 on which your recap exercise is given. What is first question? Which number should be multiplied with the 9 to get the product of 900? What number should be multiplied with the 9 so that you can get 900? Question आपसे कह रहा है कि हम 9 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 900 मिले. So you will write. So students, in the first question, if you multiply 100 with the 9, if you multiply 100 with the 9, it will become 900. So you will write 100 should be multiplied, 100 should be multiplied by 9 to get 900. 900 लाने के लिए अगर हम 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 900 हो जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. सो व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? आई एम रीडिंग दैट. क्वेश्चन 2 इज सेइंग दैट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको डिफरेंस निकालना है लार्जेस्ट 5 डिजिट का और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का. डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन. ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन द क्वेश्चन. फाइंड डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे लार्जेस्ट 5 डिजिट
number. So what is largest 5-digit number? 9. How many times? 5 times. So write 9 how many times? 5 times. Written. Similarly, smallest 6-digit number. हमारा smallest 6-digit number कौन सा होता है? Can you tell me? Yes, 1 and after that 5 times 0. Okay, that means your 1 lakh is your smallest 6-digit number. So what we are going to do? अब उसने कहा है कि डिफरेंस लेना है हमें इसका. डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन. तो आप यहाँ लिखोगे डिफरेंस. और हमारा डिफरेंस का बच्चे क्या रूल होता है? जो हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स जिसके पास जीरो, नंबर ऑफ डिजिट्स जो ग्रेटर है वो हम लिखेंगे. ओके, माइनस योर 5-digit नंबर. अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे. फॉर दैट टाइमिंग आई एम रबिंग द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई विल शो यू द सब्ट्रैक्शन. इज दैट क्लियर? Students, when you subtract this your smallest number with the largest number, you will get 1 as the answer. आपका आंसर क्या आएगा? 1. तो आप इसके सब्ट्रैक्शन करके खुद चेक करेंगे कि हमारा आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा. ओके स्टूडेंट्स, look at the question number 3. If 5 bananas are distributed among 12 peoples, then how many bananas will each person will get? That means अगर 5 डजन बनानाज है और वो 12 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट हुए तो हर एक पर्सन के पास कितने नंबर ऑफ बनानाज आएंगे, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक डजन बनाना मीन्स 12 बनानाज. 1 डजन बनाना इक्वल्स टू 12 बनानाज. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, 5 डजन ऑफ बनानाज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग हाउ मेनी पीपल्स? 12 पीपल. तो एक डजन में कितने होते हैं? 12 बनानाज होते हैं. तो अब हमारे पास 5 डजन बनानाज हैं. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन 5 डजन को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इन 5 डजन में कितने होंगे? इन 5 डजन देर आर 12 into 5. That means 60 bananas will be there. 60 bananas हो जाएंगे. Yes or no? Yes. तो अब हमने कहा ये जो 60 बनानाज है ना, हमें इन 12 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो अब हम क्या करेंगे? अपने टोटल को जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है डिवाइड कर देंगे. तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने 12 लोगों को कितने कितने बनानाज दिए हैं. राइट. सो ईच पीपल विल गेट, ईच मतलब हर एक 12 में से पर्सन को, ईच पीपल विल गेट 60 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 5 बनानास. तो हर एक पर्सन को कितने बनानास मिलेंगे? 5 बनानास ईच पर्सन विल गोइंग टू गेट. इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4. द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज 200. अब चाइल्ड इन अ क्लास परचेज्ड 10 पेन्स. एक बच्चे ने 10 पेन खरीदे और उसे टोटल कितना पे करना पड़ा उन पेन्स के लिए? 200. तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 सच पेन्स? तो आप बताओ कि 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स. 10 पेन्स की कॉस्ट कितनी है? ₹200. तो अगर हमें 7 पेन्स की कॉस्ट चाहिए तो पहले हमें 1 पेन की कॉस्ट पता होनी चाहिए. तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन. तो हमें कैसे पता चलेगी? 200 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 20. तो हाउ मेनी? तो एक पेन की कॉस्ट इज हाउ मेनी? 20 रुपीज. एक पेन की कॉस्ट 20 रुपीज हो गई. तो अब बताओ 7 सच पेन की कितनी होगी? तो हम लिखेंगे, सारे में द कॉस्ट लगा लीजिए, ठीक है. तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 7 सच पेन्स, यानी कि 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? तो आपकी जो एक पेन की कॉस्ट है वो इंटू जो 7 पेन्स की कॉस्ट आपने निकालनी है. तो 7 2 इज 14 और उसके आगे 0 लगा देंगे. तो ₹140 इज द आंसर. तो 7 पेन्स की कॉस्ट हो गई आपकी 140. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर बुक. आवर नोटबुक हैज 120 पेजेस. एक नोटबुक में 120 पेजेस है. फ्रॉम हाफ ऑफ देम आर फिल्ड बाय राजा. उन 120 पेजेस में से हाफ फिल्ड किसने किए? राजा ने. और
करने के बाद कितने पेजेस बचे? 60। जैसे 120 में से हाफ फिल कर दिया राजा ने तो 60 पेजेस बचे। अब उन 60 पेजेस में से हाफ किसने फिल किया? रानी ने। तो कितने अनफिल्ड पेजेस रह गए, कितने फिल हो गए पेजेस और कितने अनफिल रह गए हैं वो हमें बताना है। तो अब मैं आपको शॉर्ट में पहले इसका क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। टोटल पेजेस आपके कितने हैं? टोटल पेजेस है बच्चे 120। अब इस 120 में से हाफ फिल करिए राजा ने, तो यानी कि 60 राजा ने फिल कर दिए। अब इसमें से भी हाफ किसने फिल करे? रानी ने। तो यानी कि 60 के हाफ कर दिए तो 30 पेजेस रानी ने फिल कर दिए। तो हमारे रिमेनिंग पेजेस कितने रह गए? 30 तो रह गए। तो अब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। अब स्टूडेंट्स टोटल पेजेस इज 120। पेजेस फिल्ड बाय राजा, राजा ने कितने पेजेस फिल्ड करे? हाफ पेजेस उसने फिल्ड किए थे। तो पेजेस फिल्ड बाय राजा 120 का हाफ कर दिया, हाफ मतलब 2 से डिवाइड, तो 60 पेजेस राजा ने फिल करे हैं। तो पेजेस फिल्ड बाय रानी, अब हमारे पास जब 60 पेजेस राजा फिल कर चुका है तो रानी के लिए कितने पेजेस बचे? 60 पेजेस बचे ना। तो अब उन 60 पेजेस में से हाफ मतलब आधे फिर से रानी ने फिल करे। तो 60 का हाफ क्या होता है? 60 का हाफ 30 होता है। तो पेजेस फिल्ड बाय रानी इज 30। तो लेफ्ट कितने रह गए? बचे हुए पेजेस कितने रह गए? 30 पेजेस आर लेफ्ट। सो लेफ्ट पेजेस आर 30 पेजेस। ओके, so now students question number 6, if you subtract 5 from 55 times what will be left? अब जो क्वेश्चन उसकी बात समझने वाली है, वो 55 टाइम्स नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि 5 का 5 टाइम्स यानी कि 5 into 5 25। उस 25 को अगर हम 50 से माइनस करेंगे तो क्या लेफ्ट होगा? तो अब हमें लिखना है 50 माइनस दिस इज 5 टाइम्स ऑफ योर 5 का 5 टाइम्स है। तो यानी कि 5 का 5 टाइम्स ये बोला गया है। तो यानी कि 50 में से अगर आप 5 मीन 5 into 5 विल गिव यू 25। तो 50 में से 25 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 25। तो कोई भी बच्चा इसे 50 का 5 टाइम्स नहीं समझेगा, ये 5 का 5 टाइम्स है। इज दैट क्लियर? नाउ इन क्वेश्चन नंबर, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, ऑन डिवाइडिंग 400 बाय 16 व्हाट विल बी द रिमाइंडर? क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, बहुत ईजी है कि अगर हम 400 और 16 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? तो यहाँ पर मैंने डिवीजन आपको शो करा है। व्हेन यू डिवाइडेड योर 400 विद द 16, 16 2 इज 32, 40 में से 32 माइनस किया तो 8 मिला, ये 0 आएगा नीचे, कम डाउन। ओके, नाउ 16 इज मल्टीप्लाई विद द 5, 16 5 is 80, तो रिजल्ट इज 0। सो रिमाइंडर विल बी 0। सो राइट द स्टेटमेंट, on dividing 400 by 16 we will get remainder as 0. I am repeating once again, on dividing 400 by 16 we will get remainder as 0. So students, this is now we will going to do this till this question in this session only. हम question 1 to 7 ही करेंगे। I hope so the कंसेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द होल नंबर इज क्लियर टू यू। और जो ये क्वेश्चंस मैंने आज रिकैप के कराए ये भी आपको क्लियर होंगे। तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको साफ हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में कॉपी करेंगे। इज दैट क्लियर?